All right, students, welcome you back. देखो, we are doing some very important topic. Why do we fall ill? And we have discussed with you that what there are two types of diseases. One is acute disease and other is a chronic disease. And I told you in the last lecture, students, acute disease is a condition or disorder that comes rapidly and lasts for a shorter period of time. देखो acute diseases क्या है? You have got a fever and fever lasts for few days. You can take the medication and then you can go back to work. And it comes suddenly and it can be cured easily, no problem. So this is the first type of disease we told you, acute type of diseases, students. And then we told you chronic diseases are those students that persist for a longer period of time and has long lasting effects. Sometimes the chronic disease could be a terminal disease and can cause death also. And the causes of these diseases are totally different, students. And chronic diseases are not caused by infectious agents. They are mainly due to the lifestyle, unhealthy eating habits, which people are doing or people are not doing exercise, and they can get diabetes type of diseases. Diabetes, cancer, you see, they are chronic diseases and they won't last and they could cause even death. So these are the two important diseases which we have discussed already with you students in the last lecture. Typhoid is acute disease. Bone fracture is acute because if you have an accident, if there is a fracture in the bone, student, you know, plaster of Paris is applied. After 3-4 months, the bones heal naturally. But if you have diabetes, it's a chronic condition. The sugar level of the blood is higher than the normal students. Sometimes the symptoms are not apparent, and unhealthy dietary habits is the cause of diabetes, and there is no cure for diabetes. There is no cure, only health life. Therefore, we say that there will be diseases, students, in every person's life, and prevention is considered as better. Prevention is better than cure, because if you have chronic diseases, there is no cure. They will continue and they could cause death also. People who are not doing regular exercise, people who are not eating the right type of food, those people who are taking more sugar, fried foods, and bad eating habits, they will get diabetes. And the working conditions also, when you have a sedentary lifestyle, you are not doing any physical activity, students, you are more likely to get diabetes. Cancer, you know, is a chronic condition due to uncontrolled division of cells with the potential of spreading to different parts of the body. Cancer, why people are getting cancer? People who are using too much tobacco. You know, tobacco, those who are smoking too much, students, obesity, poor diet, lack of physical exercise, and people who are drinking too much alcohol, students, they can be get cancer. So it's a chronic disease. Therefore, you have to maintain a proper diet and regular exercise. Prevention is better than cure, students. That's what we talked of to you. That what we are saying, that mostly for chronic diseases, students. Chronic diseases like diabetes, cancer, there is no there is no treatment basically. There is no cure of these. We don't have any medicines. Medicines are only just to control the effects of these. That's all. And even you do not know the symptoms sometimes.
Therefore, you have to use prevention better than cure. These are called lifestyle diseases, student lifestyle. Due to poor bad eating habits, bad eating habits. People are eating too much sugar, and the sugar will eat your body. And people are taking tobacco, alcohol, and you are aware of the drugs cases. Student, the film actor who dies because of the drugs, still case is going on that people are consuming drugs. Student, drugs are very lethal, very dangerous. So they will cause you serious diseases, even death, even death. They lead to high scale of depression and other type of problems. So preventive measures are more important, student, for chronic diseases. If you have fever, if you have typhoid, what do? You know, you will go and take antibiotic for 1 week, and you will be cured, no problem. So that is a acute disease. What we said, if you have fever student like typhoid, that is a acute disease, and you can take antibiotics and you can be cured. You will be cured. This is, you already know typhoid was due to the water problem. If water is polluted, there are toxins in the water, then it will cause typhoid and other type of diseases. Now we are going to discuss the causes of diseases. Causes of diseases, student, why the disease is coming? How you will get a disease, student? One is the immediate cause. Immediate cause, students. There could be an immediate cause, that organism that enter our body and cause the disease to be termed as immediate cause. देखो आपके बॉडी में क्या हुआ, कोई ऑर्गेनिज्म चलेगी, आपको, you know what organisms are causing diseases, which one is spreading, due to which there is a lockdown, tell me nowadays, what is that, what you are facing? Corona. So corona is an immediate cause which is coming because of the, what we are saying, there is a virus. There is a virus. This virus is entering into your body. Then what will happen? You will become, you will get corona, and you know, millions of people are already all over the world experiencing this. This is an organism, student, which has entered into the body. How and how it is happening, we are going to study everything now. So virus is, student, virus. There could be virus, there could be bacteria, student. There could be protozoa. They are organisms, student. They are organisms. They can enter into the body and can cause immediate cause of the disease. Immediate cause of the disease. So this is what we're saying. First one, you see, causes of diseases, immediate cause of the disease. There could be virus, bacteria, protozoa, etc. Then, you know anything more than that? Tell me, students, do you know anything more than virus, bacteria, protozoa? What are they known as? Anything more here? You aware of any more organisms which can cause diseases? What you have heard about fungus, etc.? We have seen a lot of skin diseases coming to the people.
Pathogens, we will talk about that also. What is the second? Contributory cause. Contributory cause, students, what it means? Keep are you making your notes? Yes or no? Tell me. Students, you are making your notes? Yes, sir. They are very important. You will mark with the colored pens important points. Questions will be there. They will ask you what are the causes of diseases, then we have to show first what is the difference between acute and chronic diseases. Question was given. You have been told in detail what are chronic diseases and what are acute diseases. Examples also they can ask in the exam. Students, you should know about it. What is the contributory cause, students? The secondary which has led these organisms enter body terms as contributory cause. The organism is entering to your body, from where it is coming? Tell me. The organism is entering. Who is contributing for the entrance of this organism in your body? You are saying there is an organism. This is entering into your body. Bacteria is coming in your body, student. Virus is coming in your body. Protozoa is coming in your body. How it is coming? There should be some contributory cause. Where it is coming? If you are having dirty water, students, water you should be very careful. Water very careful. You know once what happened? The drainage pipe got burst underground and they are entered into the water. Have you experienced sometimes dirty water in your homes? Tell me. Did you ever get dirty water in your homes? बोलिए कभी गंदा पानी आया था आपके घर में? बोलो कभी एक्सपीरियंस किया? Did you ever find? No, sir. वो कई बार उसमें स्मेल आती है. मेडिकेशंस डाली जाती हैं उसमें, क्लोरीन वाटर, क्लोरीनेशन की जाती है. तो अगर पानी डर्टी हो जाएगा स्टूडेंट्स तो क्या होगा? जो ड्रेनेज का पानी है, इफ इट गोज इनटू दैट और सम bacteria या some organisms are born in this water, what will happen? They will go to your body and that organism is coming in your body through this water. तो पानी हम पी रहे हैं, अगर वो पानी से बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं स्टूडेंट्स. बाहर से पानी नहीं पीना चाहिए. कहीं से तुम सड़क पर जा रहे हो पानी पी रहे हो तो वो ठीक नहीं है. जो भी टैंक्स होते हैं उनके अंदर मेडिसिन और क्लोरीनेशन की जाती है क्योंकि देयर आर सम ऑर्गेनिजम्स इन द वाटर. जो टाइफाइड मैंने बताया दैट इज कमिंग फ्रॉम द कंटामिनेटेड वाटर. और तुम्हें पता है वो 1 मंथ तक परसिस्ट करता है. बहुत डेंजरस होता है, कुछ खा भी नहीं सकते और बहुत वीकनेस हो जाती है. आपको कोई फीवर हुआ कभी टाइफाइड किसी को? कभी हुआ? बोलो. बहुत लंबा फीवर कभी हुआ? वायरल वगैरह तो हुए 2-3 दिन, 4 दिन, 5 डेज. क्या कभी टाइफाइड भी हुआ किसी को? देखा कितनी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है वो, एंटीबायोटिक. और जब फूड तुम खा रहे हो स्टूडेंट, कंटामिनेटेड फूड. कंटामिनेटेड फूड क्या होता है स्टूडेंट? जितने भी बाहर से खाना खाते हैं लोग बहुत सारे, अब वो क्या है कि फूड जो है स्टेल फूड है, ओल्ड फूड है, तो क्या करोगे उसमें? क्या हो जाएगा फिर? बैक्टीरिया विल बी देयर इन दोस टाइप ऑफ फूड्स. इम्प्रॉपर नरिशमेंट है. जो विटामिन मिनरल्स और चीजें योर बॉडी नीड्स, यू आर नॉट गिविंग दैट, तो बॉडी में वीकनेस हो जाती है. तो उससे क्या होता है फिर? इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है. तो उससे जो बाहर से ऑर्गेनिजम्स हैं स्टूडेंट, दे कैन इजीली इन्वेड योर बॉडी. अभी ये क्या कह रहे हैं कि कोरोना के लिए क्या कह रहे हैं कि कोरोना आ गया, वायरस है जी, अभी तो देयर इज नो ट्रीटमेंट. नो ट्रीटमेंट, इसका कोई मेडिकेशन नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है. तो कह रहे हैं कि इम्प्रूव योर इम्यूनिटी, इम्प्रूव योर इम्यूनिटी. तो अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रेंथ करने के लिए ऐसा फूड खाइए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए और एक्सरसाइज करिए. जो भी क्वारंटाइन कर रहे हैं, अभी अभी और भी न्यूज़ मिली है जो कई देशों के प्रेसिडेंट को भी हो गया कोरोना. तो आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं अभी भी. जो वायरस है
तो कहीं से आ रहा है ना तुम्हारे बॉडी के अंदर वायरस आ रहा है। तो काज ऑफ द डिसीज है स्टूडेंट, एक इमीडिएट काज होता है, ये कंट्रीब्यूटरी, ये कोई कहीं से आ रहा है, किसी आदमी के थ्रू आ रहा है या किसी चीज से के थ्रू आ रहा है। आप जो चीजें खा रहे हैं स्टूडेंट, ये कह रहे हैं कि जो भी आप घर में सप्लाईज ले रहे हैं उनको पहले स्प्रे कर लो, फिर उनको यूज करो। आप बाजार से वेजिटेबल्स खरीद रहे हो, मान लो उसमें ही कोरोना है, तो वो क्या करेगा, बॉडी में चले जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं, आपने कोई आइटम को टच कर दिया तो भी वो कह रहे हैं कि उसमें से भी आ सकता है। तो ये पुअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये कंट्रीब्यूटरी कॉजेज होते हैं स्टूडेंट देर। तो दो कॉज मैंने बताए, इमीडिएट कॉज एंड कंट्रीब्यूटरी कॉज। यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टू स्टूडेंट्स। तो इमीडिएट कॉज है जैसे वायरस बैक्टीरिया प्रोटोजोआ डायरेक्टली आ गया या कि किसी चीज के थ्रू आ गया। यहाँ पर वी आर शोइंग यू द डिफरेंसेस बिटवीन स्टूडेंट इमीडिएट कॉज एंड कंट्रीब्यूटरी। These are the actual causes that are responsible for the disease. Causes can be infectious or non-infectious. अभी हम बताएंगे infectious और non-infectious diseases, what is the difference, ठीक है। जैसे बैक्टीरिया, फंगी, वायरसेस, ये जर्म्स आपके बॉडी में आ जाते हैं। कौन कौन से आए हैं, बैक्टीरिया, फंगी, वायरसेस। ये कोरोना का वायरस, कोरोना वायरस जिसको आप कह रहे हो, वायरस आपके बॉडी में चले गया। और देखिए ट्रीटमेंट नहीं है हमारे पास, वायरस को मार ही नहीं पा रहे। और फिर कंट्रीब्यूटरी केसेस हैं, काजेज हैं स्टूडेंट। दीज आर नॉट डायरेक्ट काजेज बट फैक्टर। जैसे आपने जो डाइट खाई, पोल्यूटेड पानी पी लिया, या अगर एटमॉस्फेयर में कार्बन के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा हो गए स्टूडेंट्स, पोल्यूशन का लेवल तुम्हें पता है दिल्ली में लास्ट ईयर क्या हुआ था। लास्ट ईयर यू आर सीन द पीपीएम लेवल जो है बहुत बढ़ गया था। क्या था, पोल्यूशन लेवल बहुत बढ़ गया था। पोल्यूशन के कारण क्या हुआ था, स्कूल्स वर क्लोज्ड फॉर फ्यू डेज। हाई पोल्यूशन हुआ था, बोला हुआ था या नहीं हुआ था हाई पोल्यूशन। क्या लास्ट ईयर स्कूल बंद हुए थे पोल्यूशन के कारण, यस और नो। Yes, sir. तो वो इतना स्मोक आ गया था स्टूडेंट, तो वो लंग्स इन्फेक्शन हो रही थी, लंग्स के अंदर कार्बन के पार्टिकल्स जा रहे थे और इससे डेथ भी होती थी, बहुत सारे लोग मरे भी थे। Now it will be obvious that all diseases will have immediate causes and contributed causes. Almost most diseases will have many causes. हम ये कहना चाहते हैं कि कोई भी डिसीज जो हो रही है स्टूडेंट, उसका कोई सिंगल कॉज नहीं है। आई कैन नॉट से दैट देयर इज ओनली वन कॉज, ओनली वन कॉज नहीं है, बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं। मैनी कॉजेज आर देयर, क्या हम कह रहे हैं, बहुत सारे कॉजेज हैं। देखो हम ये कह रहे हैं, देखो व्हाट हैपेंड कि एक देयर इज अ चाइल्ड, बहुत सारे बच्चे हैं आपके सोसाइटी में, बहुत सारे बच्चे हैं छोटे छोटे, लेकिन उनमें से वन ऑफ द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम लूज मोशंस। देखो एक एक बेबी है, हम कह रहे हैं उसको लूज मोशन शुरू हो गई, ठीक है। मान लीजिए इन योर सोसाइटी वेयर यू आर लिविंग देयर आर 500 हाउसेस, 500 हाउसेज हैं आपके वहां, और मान लो 10 बेबीज हैं, उनमें से एक को हुआ, मैं कह रहा हूँ वन को हुआ। अब ये कहां से आया भाई, अब कोई इन्फेक्शन है, तुम कह रहे हो इन्फेक्शन हो गई है स्टूडेंट, क्या बोलते हैं डॉक्टर्स के पास जाओगे, कह रहे इन्फेक्शन है जी। इन्फेक्शन में तुमने क्या इन्फेक्शन हुई है भाई, कोई बैक्टीरिया कोई वायरस कुछ तो गया है बॉडी में, ठीक है। तो तुम कह रहे हो जी वायरस, वायरस इन्फेक्शन हो गई, वायरस इन्फेक्शन हो गई है। तो अब आप ये सोचोगे कि जो सारे 500 पीपल जो हैं, सेम वाटर दे आर ड्रिंकिंग द सेम वाटर स्टूडेंट्स, इसी टाइप का फूड खा रहे हैं, सभी एक जगह से सब्जी खरीद रहे हैं, आटा खरीद रहे हैं, फिर इसको क्यों हो गया। तो आपने कहा जी ये कोई हो सकता है कि, वो कह रहा हो सकता है कि ये जो वाटर है इसका, ये डर्टी था, लेकिन डर्टी वाटर तो सबने पिया, उसमें से सिर्फ एक बच्चे को हुआ। तो वो कह रहा है अच्छा जी इसका इम्यून सिस्टम बेटर है, मतलब इसका इम्यून सिस्टम वीक था। क्या था, यू आर सेइंग इम्यून सिस्टम इज वीक, इसका इम्यून सिस्टम स्टूडेंट वीक है, इस बच्चे को हो गया, या कि इसकी डाइट पुअर थी,
ये वीक था, कमजोर था बच्चा, या तुम कह रहे हो कि प्रॉब्लम यह है कि कुछ इसमें जेनेटिक प्रॉब्लम है, तो फिर कॉज क्या हुआ स्टूडेंट? तो कई कॉजेज हैं। एक तो डायरेक्ट वायरस जा रहा है, एक किसी फूड से जा रहा है, एक के बच्चे की वीकनेस इतनी है, उसका सिस्टम ही इतना वीक है कि उसके ऊपर अटैक कर रहा है। बाकियों के अंदर भी गया, लेकिन उनके पास क्या था, स्ट्रॉन्ग था सिस्टम, उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग था, उनको डिसीज नहीं हुई। तो देर कुड बी मैनी, आई एम सेइंग देर कुड बी मैनी कॉजेज ऑफ द डिसीज स्टूडेंट, एक कॉज नहीं है। हम नहीं कह सकते कि देयर इज अ सिंगल कॉज ऑफ द डिसीज। तो दे डिसीजेस विल हैव मैनी कॉजेज, डिसीजेस विल हैव मैनी कॉजेज स्टूडेंट, कई रीजंस होंगे डिसीजेस के। आपका एनवायरनमेंट क्लीन नहीं है, गार्बेज बहुत ज्यादा फेंक रहे हो, कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिससे कि एक फैक्टर नहीं है स्टूडेंट, एक कॉज नहीं है किसी भी डिसीज का, कई सारे कॉजेज हैं। पब्लिक सर्विसेज नहीं है, कईयों को ट्रीटमेंट नहीं मिलता स्टूडेंट्स, किसी को बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिला। देखो बहुत सारे पेशेंट कोरोना में सेव हो गए, आपने कहा कि ये तो कोरोना हुआ था बच के आ गया, आपको ये भी सुना कि अरे इसको कोरोना हुआ, इसकी तो डेथ हो गई, तो वो कह रहे हैं जी इसको तो ट्रीटमेंट सही नहीं मिला, तो पब्लिक सर्विस ठीक नहीं मिली, तो फिर क्या करेंगे? पब्लिक सर्विसेज आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट स्टूडेंट। तो जिन जो बहुत रिच लोग हैं उनका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा हो गया, बहुत बड़े हॉस्पिटल में चले गए, और पुअर, तुम कह रहे हो पुअर को ट्रीटमेंट नहीं मिला तो उसकी डेथ हो गई। तो ये सारी चीजें हैं। पॉवर्टी भी एक फैक्टर होता है, जिसे थर्ड लेवल कॉज होता है डिसीज का, थर्ड लेवल कॉज होता है डिसीज का। पुअर पीपल आर लिविंग इन अनहेल्दी, हाइजीनिक एंड सैनिटेशन कंडीशंस। पुअर लोग जो है वो अनहेल्दी कंडीशंस में रह रहे हैं, तो वहाँ पे स्प्रेड ऑफ डिसीजेज, कॉज ऑफ डिसीजेज ज़्यादा है, वहाँ पे बीमारियां ज़्यादा हो रही हैं स्टूडेंट्स। अब हम आगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछता है कि दो टाइप की डिसीजेज कॉजेज हैं, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस क्या होती हैं। देखो एक डिसीज होती है इन्फेक्शियस डिसीजेस, इन्फेक्शियस डिसीज कह रहा हूं मैं, बताओ कोरोना इज इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस, जल्दी बताओ। कोरोना जो है ये इन्फेक्शियस डिसीज है या कि नॉन इन्फेक्शियस है? बोलो जल्दी, व्हाट डू यू आंसर स्टूडेंट्स? ये जो कोरोना स्टूडेंट्स, ये इन्फेक्शियस है या नॉन इन्फेक्शियस डिसीज है, जल्दी बताओ, व्हाट इज योर आंसर? अरे कोरोना स्प्रेड हो रहा है एक से दूसरे पर, हो रहा है या नहीं हो रहा, जल्दी बताओ। Yes, sir. आपको पता है कि क्वारंटाइन क्यों किया जा रहा है? व्हाई दे आर गोइंग फॉर क्वारंटाइन? because it will pass from one person to another person by physical touch और by sneezing, जो भी वाटर के ड्रॉपलेट्स गिर रहे हैं स्टूडेंट। आपने मास्क क्यों लगाया है? कोरोना के सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? in 1980 also there were diseases when millions of people died in the history of the man, but they were less infectious than corona. Corona is highly infectious disease student। ये एकदम पास करता है, एक कम्युनिकेट हो जाता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, तो वो बहुत डेंजरस है कि एक आदमी जो है वो कह रहे हैं 50 आदमियों को इन्फेक्ट कर देगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इन्फेक्शियस डिसीज आर कास्ड बाय माइक्रोस्कोपिक जर्म्स। इन्फेक्शियस डिसीजेज तब होती हैं जब कोई स्टूडेंट, माइक्रोस्कोपिक जर्म होते हैं। क्या होते हैं माइक्रोस्कोपिक जर्म्स? कौन से? अभी तो आपको बताया कि बैक्टीरिया और वायरस, बैक्टीरिया और वायरस स्टूडेंट, दे आर द small very tiny germs, they get into the body, they will get into the body, ये बॉडी में एंटर कर जाएंगे स्टूडेंट्स एंड विल कॉज प्रॉब्लम्स, बट नॉट ऑल आर infectious diseases, they all are not infectious diseases student। Infectious are those which spread directly from one person to another। तो infectious diseases क्या होती हैं? They spread directly from
one person to another। आप किसी जगह पर गए स्टूडेंट, वहां पर किसी को कोरोना था, आप उसके साथ बैठ गए, तो पता लगा कि आपको भी कोरोना हो गया, तो उस पर्सन से आप तक पहुंच गया, तो ये स्प्रेड हो गया फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, तो ये इन्फेक्शियस डिसीज है। Infectious diseases that spread from person to person are said to be contagious। इनको क्या बोलते हैं? Contagious diseases। What are contagious diseases, students? Which spread from one person to another person through direct contact। Direct contact कैसे होता है students? How there is a direct contact? टच कर दिया मैंने आपको, एक ने दूसरे को टच कर दिया, डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया स्टूडेंट, फिजिकल कांटेक्ट हो गया। ये किस कर दिया किसी को, डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया। तो एक पर्सन को इन्फेक्शन थी, उससे आपको पास हो गई स्टूडेंट। तो माइक्रोब जो था, इट ट्रेवल्स थ्रू एयर आफ्टर समवन स्नीजेस और कफ। ये जब कफ कर रहे हैं स्टूडेंट, स्नीज कर रहे हैं, आप छींक रहे हैं, तो माइक्रोब जो है वायरस जो है स्टूडेंट, ये क्या कर रहा है, ये ट्रेवल कर जाता है, ये ट्रेवल कर गया एयर से वन पर्सन टू अनदर पर्सन, तो दूसरे पर्सन तक पहुंच गया, अनदर पर्सन। तो ये कंटेजिनियस डिसीजेज हैं स्टूडेंट, इन्हें क्या बोलते हैं, क्या बोल रहा हूं मैं, ये जो डिसीज है स्टूडेंट, ये जो है, ये कंटाजियस डिसीजेज हैं, जो कांटेक्ट से स्टूडेंट एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जा रही हैं। आपने टच किया तब भी आ गया, या कि मान लो कोई किसी का आपने स्ट्रा यूज कर लिया, एक बॉटल में स्ट्रा से पी रहे हो, वो स्ट्रा आपने यूज कर लिया स्टूडेंट, या उसको आपने हाथ लगा दिया, तो क्या हुआ। इसी तरह ही आप इनटू शावर ले रहे हैं वहां पर, तो एथलीट्स फुट एक डिसीज होती है स्टूडेंट, तो वो ट्रांसमिट हो जाती है। और ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज होती हैं स्टूडेंट्स, जब लोग सेक्स करते हैं तो वो ट्रांसमिट हो जाती हैं डिसीजेज, सेक्सुअल कांटेक्ट से भी होती हैं बहुत ज्यादा। तो जो लोग ये सेक्स कर रहे हैं उनके लिए बहुत डेंजरस है, बहुत सारी ऐसी डिसीजेस फैली हुई हैं सर वर्ल्ड में। तो फिर हम क्या करें स्टूडेंट, ये सारी डिसीजेज कैसे हो, ये कंटाजियस डिसीजेज हैं, इसे फिजिकल कांटेक्ट से होती हैं। तो इन्फेक्शियस डिसीजेज का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, कि ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन को टच से, या जो ऑब्जेक्ट्स आप यूज कर रहे हो, जो दरवाजा उसने खोला आपने उसी पे हाथ लगा दिया स्टूडेंट, वही कपड़े जो पहने थे उस पे हाथ लगा दिया, तो आपने वो टॉवल किसी का यूज कर लिया, ये सारे, आप किसी के साथ बैठ गए तो ट्रांसमिट हो गया। आपने मास्क क्यों लगाया है, तो आपको समझ आ गई कि आपके जो वाटर ड्रॉपलेट्स गिर रहे हैं, दे विल पास ऑन टू अनदर पर्सन स्टूडेंट्स। तो जो लोग ये सेक्स वगैरह कर रहे हैं उनके लिए बहुत डेंजरस है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, एसटीडी। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेज बहुत डेंजरस होती हैं, और इससे बहुत ही खतरा होता है लोगों को। तो फिर वो कहते हैं, फिर हाउ कैन यू प्रोटेक्ट, बताओ कैसे प्रोटेक्ट करोगे, प्रोटेक्शन क्या है फिर, बताओ कोरोना के लिए क्या प्रोटेक्शन है आपके पास, क्या 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 मेजर आप कर रहे हो, हाउ यू आर प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ फ्रॉम कोरोना। आप बताइए दो तीन बातें, क्या कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हो। ये एक इन्फेक्शियस डिसीज है कोरोना, हाईली इन्फेक्शियस है मैं कह रहा हूँ, इसीलिए ही इसका नंबर बढ़ता जाता है, एक पर्सन से 10 20 50 तक जाएगी, 50 से फिर और आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो अब आप उसके लिए क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स ले रहे हैं, कोई ट्रीटमेंट है नहीं है, कोई ड्रग है नहीं है, कोई मेडिसिन है नहीं है, वैक्सीन है नहीं है, देन व्हाट यू आर डूइंग, फिर उसको कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बताओ आप क्या क्या प्रिकॉशंस कर रहे हैं, टेल मी एटलीस्ट 2 और 3 थिंग्स। सर मास्क लगा रहे हैं। मास्क लगा दिया, वेरी गुड। तो इससे क्या होगा कि जो स्नीजिंग कर रहे हो तुम,
जो स्नीज कर रहे हो तुम, छींक वगैरह, उससे वो ट्रांसमिट नहीं होगा, डिसीज जो दूसरे तक नहीं पहुंचेगा। और क्या कर रहे हो आप सैनिटाइजर का यूज कर रहे हो, हैंड्स वॉश कर रहे हो स्टूडेंट बार बार, हाथों से बहुत कुछ होगा, सैनिटाइजर यूज कर रहे हो आप, सैनिटाइजर से हैंड वॉश कर रहे हो। और फिर सबसे बड़ी बात है कि अभी ये कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए इज ऑन क्वांटाइज्ड, दोनों को हो गया। अब वो 15 दिन के लिए बंद हो गए कमरे में, तो आइसोलेशन आइसोलेशन में चलेगा, आइसोलेशन में चलेगा स्टूडेंट। तो इसे क्वारंटाइन कहते हैं। हम लोग जो लॉकडाउन हो रहा है, लॉकडाउन जो हो रहा है स्टूडेंट, उसमें क्या कर रहे हैं, मैं तो अपने घर से पढ़ा रहा हूँ, तुम्हारे मेरे पास थोड़ी बैठे हुए हो। अगर कोरोना नहीं होता तो मेरे यहाँ पढ़ रहे होते, अब तुम अपने घर हो, मैं अपने घर से पढ़ा रहा हूँ, क्यों पढ़ा रहा हूँ? तो वी आर इन आइसोलेशन स्टूडेंट्स, वी आर सेपरेटेड, क्योंकि कोरोना इज एन इन्फेक्शियस डिसीज, ये वायरस है। हमने आपको बताया इन्फेक्शियस डिसीजेस कैसे स्प्रेड होती हैं, फ्रॉम 1% to 1%, कोई भी तरीके का कॉन्टेक्ट हो सकता है, मास्क लगाए, स्नीजिंग हो सकती है स्टूडेंट, ये इस तरीके से ये जो ऑर्गेनिज्म है, इट विल पास फ्रॉम 1% to another person। तो जो लोग बीमार हैं उनसे दूर रहना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो वो सारे ट्रीटमेंट के तरीकों से हम इसको कंट्रोल कर रहे हैं। अगर ये सारी प्रिकॉशंस हम यूज नहीं करते तो मिलियंस ऑफ लोग अभी भी यहाँ पर बीमार होते स्टूडेंट्स, और वो इसलिए बचे हुए हैं, इसलिए आपके स्कूल क्लोज हैं और नहीं खुल रहे। If they will be opened, what will happen? This is an infectious disease. If one child is suffering, it will go to 100 and 100 to 1000, फिर सभी बच्चे एकदम ट्रांसमिट हो जाएंगे। तो इसके लिए ही ये सारी प्रिकॉशंस जो है हम कर रहे हैं। तो आप अगर वैक्सीनेशन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट, अभी नहीं है। तो ये सारी प्रिकॉशंस हमने यहाँ बताई। यू कैन प्रोटेक्ट फ्रॉम कंटेजियस डिसीजेस। कंटेजियस डिसीज क्या होती है स्टूडेंट? which will spread from one man to another by contacts। फिजिकल कॉन्टेक्ट्स हो सकते हैं, इनडायरेक्ट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट्स हो सकते हैं। आप अपने हैंड्स को वॉश करेंगे स्टूडेंट्स, एंड जो सिक्यों से दूर रहेंगे, और आप पूरी इंफॉर्मेशन लेंगे, वैक्सीनेशन वगैरह करेंगे, एंड यू विल यूज कॉन्डम्स ड्यूरिंग एनी टाइप ऑफ सेक्स। तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बहुत खतरनाक होती है, तो इससे बहुत लोग मरे से वर्ल्ड के अंदर। तो ये सब बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा लोगों को। जो भी इंफेक्शियस डिसीज होती हैं वो बहुत ही डेंजरस होती है। नॉन इन्फेक्शियस से प्रॉब्लम नहीं है, एक को हुआ, अरे हार्ट अटैक किसी को हो रहा है तो उसको हो रहा है ना, उसका वो कोई स्प्रेड थोड़ी हो रहा है किसी और को। लेकिन अगर कोई इन्फेक्शियस डिसीजेज हैं तो वो क्या करेंगे, एक से दूसरे में चले जाएंगे, तो बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड हो जाएंगे, अब बढ़ता जाएगा। तो ये सारी प्रॉब्लम हम फेस करेंगे। तो आपको समझ में आई कि दो टाइप की डिसीज मैं बता रहा हूँ, इन्फेक्शियस, कंटेजियस। ये जर्म्स होते हैं, छोटे छोटे जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया और वायरसेस कैन बी देयर। आप ये देख रहे हैं कि सबका ट्रीटमेंट भी नहीं है सेम, डिफरेंट वायरस है, उसको मारने के लिए डिफरेंट चीज चाहिए, क्या क्या करेंगे, हमारे पास अभी नहीं है। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया तुम्हें? जी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये Yes, इसलिए sir. इंपॉर्टेंट है कि इसको हम फेस कर रहे हैं आज की डेट पे। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, व्हाई डू वी फॉल इल बिकॉज ऑफ द कोरोना पैंडेमिक, जो कि अभी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, अभी कोई कुछ है ही नहीं हमारे पास। देयर इज नो पॉसिबिलिटी इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, अभी कुछ नहीं है। अब देखो कि ये साइकिल ऑफ इन्फेक्शन होता है स्टूडेंट, कैसे ये ट्रांसमिशन होती है। देखो ये एक डायग्राम है जो ये शो कर रही है कि किस तरह से ये साइकिल ऑफ इन्फेक्शन होता है। देखो ये बैक्टीरिया है। इन्फेक्शियस एजेंट क्या होते हैं स्टूडेंट? जैसे बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, प्रोटोजोआ, ये है जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं स्टूडेंट? ये यहाँ पर जैसे रेजरवायर है पीपल का, जैसे आपका पानी है, फूड है, जहाँ पर आपके रेजरवायर हैं उसके अंदर चले गए, और ये फिर आप एक्सक्रीट करते हैं, जो भी सिक्रीशंस करते हैं, ये जो ड्रॉपलेट्स हैं देख रहे हैं, स्किन कांटेक्ट हो रहे हैं, स्नीजिंग करते हैं, सांस ब्रीदिंग, ब्रीद तो करेंगे ही हम लोग, ब्रीदिंग लेंगे, सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, तो क्या होगा, ये एग्जिट करेंगे यहाँ से ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, सिक्रीशंस की फॉर्म में।
तो ह्यूमन जो सिक्रीशंस होते हैं, यूरिन और जो भी स्टूल वगैरह होता है, अगर ये इससे भी ये पास होते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन होते हैं, ये कैसे होंगे? ये ब्लड बोर्न होते हैं, एयरबोर्न होते हैं, ड्रॉपलेट्स, कॉमन व्हीकल, वेक्टोब्रोम, ये सब बातें अभी हम बताएंगे आपको कैसे ये एक जगह से दूसरे जगह पर जा सकते हैं। तो पोर्ट ऑफ एंट्री क्या है? ब्रोकन स्किन होती है, जैसे स्किन के थ्रू जा सकते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, गैस्ट्रल ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट, इन सब में से ये जा सकते हैं, एंट्री इनकी हो जाती है। और ये ससेप्टेबल कौन होते हैं? सबसे ज्यादा किन के ऊपर हमला होने वाला है? देखो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट कोरोना पैंडेमिक आल्सो, दे आर सेइंग चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल शुड बी प्रिवेंटेड मोस्ट। जो लोग बीमार हैं स्टूडेंट, जो वीक हैं, उनका इम्यून सिस्टम कमजोर है, उनके ऊपर ज्यादा अटैक होने वाला है। So people, they are saying people who are old and senior citizens, they should not come out of homes during corona pandemic, because it more people of higher age will die, because students, they are more prone to, they are more susceptible host. वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होस्ट है, उनके अंदर चले जाएगा तो उनके पास पावर नहीं है रिकवर करने की। तो जिनको डायबिटीज है, जिनके ऊपर डिसीज है, कोई एल्डरली है, ये सब ससेप्टिबल है। तो इसे क्या बोलते हैं? साइकिल ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन जो है ना, ये सबसे डेंजरस चीज है वर्ल्ड में। देखो हमें, वी वर नॉट अवेयर ऑफ दिस इन्फेक्शन क्या होती है। जब से कोरोना आया है तब से हमें समझ में आ गया। एवरीवन नाउ अंडरस्टैंड कि इन्फेक्शियस डिसीजेज होती है, बहुत डेंजरस होती है, ये बहुत ज्यादा स्प्रेड कर जाती है 1% टू अनदर पर्सन, 1% टू 10% चले जाएगी, और 10 से फिर क्या होगा? 100, और इस तरह से ये साइकिल बढ़ता जाएगा स्टूडेंट। तो बड़ा इन्फेक्शन चलती जाएगी, तो बहुत ज्यादा फिर इन्फेक्शन हो जाएंगी। तो अगर ये 1% है, इस यहीं पे स्टॉप करना है, इसको ही हमें आइसोलेट करना है। क्या करना है? आइसोलेशन, क्वारंटाइन। नहीं तो ये क्या करेगा कि ये सब आगे जाने वाला। तो ये सिर्फ एक डायग्राम थी, मैंने आई वांटेड टू शो यू हाउ दिस इन्फेक्शियस डिसीजेस, कंटेजियस डिसीजेस जो है, वायरस बैक्टीरिया कैसे जा रहा है, प्रोटोजोआ भी होता है, फंगी भी होती है, ये कैसे स्प्रेड कर देंगे एक आदमी से दूसरे आदमी तक चले जाए। आप देखो नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस क्या होती हैं। नॉन इन्फेक्शियस का मतलब ये है कि आप किसी को कह रहे हैं मुझे हार्ट की बीमारी है, देखो मेरे को हाई ब्लड प्रेशर हो गया, ठीक है, अब मेरे को हाई ब्लड प्रेशर है, इससे दूसरे को थोड़ी आ जाएगा। इफ आई एम सफरिंग फ्रॉम सपोजिंग हार्ट प्रॉब्लम, ठीक है, अगर मेरा हार्ट अटैक हुआ, या मेरा कोई प्रॉब्लम आ गई मेरे बॉडी के अंदर स्टूडेंट, तो ये किसी दूसरे पे थोड़ी चलेगी। इट इज नॉट गोइंग फ्रॉम 1% टू अनदर, क्योंकि इसका काज इन्फेक्शियस एजेंट्स नहीं है स्टूडेंट्स। देयर काजेज वेरी, दे आर नॉट एक्सटर्नल कॉजेज। इनके जो काजेज होते हैं स्टूडेंट, देयर काजेज आर नॉट एक्सटर्नल, स्टूडेंट्स। इसके लिए कोई मेरे पास वायरस या बैक्टीरिया नहीं आया मेरे बॉडी में जिसके कारण ये डिसीज हुई है। तो ये डिसीज इंटरनल है स्टूडेंट, इंटरनल है, इट इज इन माय बॉडी। ये मेरे बॉडी में हुई है क्योंकि मैं बैड ईटिंग हैबिट्स थी मेरी, मैं बहुत ज्यादा खाता था, मेरे को ओबेसिटी हो गई, फैट्स हो गई, मेरे बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, लेकिन इट इज नॉट गोइंग टू बी ट्रांसमिटेड टू अदर पर्सन स्टूडेंट्स, क्योंकि कोई भी इसमें वायरस या बैक्टीरिया नहीं है जिसके कारण ये हुई है। इसे बोलते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस। तो हमने दो टाइप की डिसीजेस बताई, जैसे कई जो कैंसर्स भी होते हैं ना स्टूडेंट, यू आर हर्ड अबाउट कैंसर। ये तो नहीं है कि एक आदमी को कैंसर है तो उससे मुझे भी कैंसर हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हुआ।
तो ये कोई इन्फेक्शियस डिसीज नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों को कैंसर इसलिए होता है कि उनमें कुछ जेनेटिक्स अबनॉर्मेलिटीज होती हैं, और हाई ब्लड प्रेशर, एक्सेसिव वेट एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज के कारण भी कैंसर कईयों को होता है, तो कई प्रॉब्लम्स है। तो ये इंटरनल है, इट इज ए इंटरनल डिसीज स्टूडेंट, इंटरनल डिसीज, these are called non infectious diseases। तो व्हाट क्वेश्चन फिर आ गया आपके पेपर में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन infectious and non-infectious diseases, non-infectious disease। हमें देखना है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है स्टूडेंट, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिसीज में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर हमने एक टेबल में बताया, दिस अ टेबल स्टूडेंट। देखो, इन्फेक्शियस डिसीज आर स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीजेज, इन्हें कम्युनिकेबल डिसीजेज भी कहा जाता है। These are caused by microorganisms called pathogens। पैथोजेंस क्या होते हैं, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरसेस। जो कॉलेरा, चिकन पॉक्स और मलेरिया होता है स्टूडेंट, देख रहे हैं, ये स्प्रेड कर जाता है, कॉलेरा, चिकन पॉक्स, मलेरिया। ये इन्फेक्शियस डिसीजेज दिख रही है हमें यहाँ पर, देख रहे हो कि चिकन पॉक्स इनको होता है जब दूसरे स्किन से चले जाता है तो जा सकते हैं। कॉलेरा जो होता है, ये जो भी वाटर के थ्रू आ रहा है, वाटर के थ्रू आ रहा है, तो ये स्प्रेड हो जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं। और नॉन इन्फेक्शियस डिसीज है, दे डू नॉट स्प्रेड टू अदर्स एंड दे रिस्ट्रेन विद इन अ पर्सन हु हैज कॉन्टेक्टेड देम। तो ये इंटरनल डिसीज है, इट इज नॉट गोइंग टू, the diseases are caused by pathogens, but other factors such as nutritional deficiency, gender of an individual and lifestyle also influence the disease। जैसे डायबिटीज, कैंसर, अस्थमा, ये सब नॉन इन्फेक्शियस हैं। डायबिटीज एक आदमी से दूसरे आदमी पे स्प्रेड होने वाली नहीं है स्टूडेंट्स, इनके भी पैथोजेंस होते हैं जिनके कारण ये होती है, लेकिन ये स्प्रेड नहीं होती, ये इन्फेक्शियस नहीं है, कैंसर, अस्थमा एक्सेट्रा। तो अगर हमें ये पता लग जाए कि व्हाट टाइप ऑफ डिसीजेज आर देयर स्टूडेंट्स, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस, तो फिर वी कैन फाइंड द ट्रीटमेंट फॉर दोस डिसीजेज एंड वी कैन ट्राई टू फाइंड आउट हाउ वी कैन प्रिवेंट देम फ्रॉम स्प्रेडिंग एट द कम्युनिटी लेवल। जैसे कि वायरस के बारे में, जब once we have full information about coronavirus, so we have already given guidelines, government has given guidelines student, medical experts have given guidelines how to protect yourself and prevent for the spread of corona in the community। तो प्रिकॉशंस हम ऑलरेडी ले रहे हैं, जो वो मेडिकल की टीम से और हमारी गवर्नमेंट हमें बता रही है, in order to prevent the spread of corona pandemic। तो ये कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं, दे आर इन्फेक्शियस डिसीजेज। अब उनके काजेस हमें पता लग जाते हैं तो हम उनको फिर कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले यही पता करना पड़ता है जो डिसीज है वो इन्फेक्शियस है या नॉन इन्फेक्शियस है। क्या पता करना है, कोई भी डिसीज है तो ये पता करोगे इज इट इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस, सबसे पहले यही पता करो। तो सबसे पहला पॉइंट यही है, ये पता करो कि ये इन्फेक्शियस है या नॉन इन्फेक्शियस। जैसे ही पता लगा कि कोरोना जो है, कोरोना वायरस जो है ये इन्फेक्शियस है स्टूडेंट्स, इमीडिएटली हमने क्या किया, लॉकडाउन किए, और कितने कितने दिन के लिए किए तुम्हें पता है, एकदम सारा कुछ बंद कर दिया था as soon as the information that it is an infectious disease। ये नहीं करते तो क्या होता, तुम्हें समझ में आ रही है कि millions of people would be infected। तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है कि कॉज ऑफ द डिसीज, जब डिसीज आ रही है उसका कॉज पता होना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स, तभी हम उनको कंट्रोल कर पाएंगे, प्रिवेंट कर पाएंगे।
और फिर वैक्सीनेशन वगैरह हम उनके लिए अपना यूज करेंगे। अब देखो इन्फेक्शियस एजेंट्स कौन से होते हैं स्टूडेंट। अब इन्फेक्शन कौन कर रहे हैं, इसे बोलते हैं इन्फेक्शियस एजेंट्स स्टूडेंट्स। हमें क्या चाहिए, इन्फेक्शियस एजेंट्स कौन से होंगे स्टूडेंट, वो ऑर्गेनिजम्स जो डिसीज कॉज करते हैं, द ऑर्गेनिजम्स दैट कैन कॉज डिसीज। तो आपने कहा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, जैसे वायरसेस हैं, बैक्टीरिया है, फंगी है, ये सब क्या है, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। और सम आर सिंगल सेल्ड एनिमल्स और प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोन्स, ये सब क्या है स्टूडेंट, स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोस्कोपिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। सम कैन बी कॉज्ड बाय मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज वर्म्स, वर्म्स भी होते हैं, तुमने सुना होगा वर्म्स भी होते हैं, तुम्हारे पेड़ में वर्म्स भी होते हैं स्टूडेंट। ये पैरासाइट्स भी होते हैं, ये जो बड़े बड़े होते हैं आपके बॉडी के अंदर चले जाते हैं। तो ये सब इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं स्टूडेंट, और इनको कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, पैथोजेंस, पैथोजेंस। तो हमें इनसे बचना है। इनसे बचने के लिए आपको क्या करना है, क्लीन वाटर लेना है, फूड को प्रॉपर खाना है, फ्रेश फूड, स्टेल फूड नहीं खाना, उनमें पैदा हो जाएंगे। और ये बाजार से मार्केट से जो भी चीजें हम खरीद रहे हैं स्टूडेंट, वो उनमें क्या हो सकते हैं, ये सब चीजें हो सकती हैं। ये वर्म्स और पैरासाइट्स भी होते हैं, ये बॉडी के अंदर चले जाएंगे, ये पैथोजेंस होते हैं। देखो ये हमारे बॉडी में जाते ही डिसीज कॉज करेंगे, बिकॉज डिसीज आइदर बाई डिसरप्टिंग। तो ये क्या करेंगे, बॉडी के जो नॉर्मल फंक्शंस हैं उसको ये खराब कर देंगे स्टूडेंट्स। आपको पता है कि आपके अंदर यू हैव सेल्स, यू हैव टिश्यूज, यू हैव ऑर्गन्स, दे आर फंक्शनिंग इनसाइड योर बॉडी। तो वो डिसरप्ट कर देंगे, ये क्या करेंगे, डिसरप्ट कर देंगे स्टूडेंट्स आपके फंक्शंस, नॉर्मल फंक्शंस को, डिसरप्ट द बॉडीज नॉर्मल प्रोसेसेस। तो जो नॉर्मल प्रोसेसेस बॉडी में हो रही है उनको डिसरप्ट कर देंगे। और जो बॉडी का आपके अंदर एक इम्यून सिस्टम होता है, आपके बॉडी में क्या होता है स्टूडेंट, इम्यून सिस्टम, इसे क्या बोलते हैं, डिफेंस। आपके बॉडी में एक डिफेंस है आपको बचाने के लिए, डिफेंसिव रिस्पॉन्स, डिफेंसिव सिस्टम। तो आपका डिफेंसिव सिस्टम है, ये उसको कमजोर कर देंगे स्टूडेंट, उसे उसे तोड़ देंगे, उसे खराब कर देंगे। तो जिनका इम्यून सिस्टम वीक है उनमें जल्दी अटैक होने वाला है, क्योंकि ये अंदर चले गए आपके बॉडी में। तो इससे क्या कॉज करते हैं, ये हाई फीवर कॉज कर देंगे, दे विल कॉज यू हाई फीवर। इन्फ्लेमेशंस हो जाती है बॉडी के अंदर, स्टूडेंट स्वेलिंग कर देते हैं, और इस तरह से डिफरेंट सिम्टम्स आपको मिलते हैं स्टूडेंट। तो इन्फेक्शियस डिसीजेज कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू कॉन्टैक्ट विद बॉडी फ्लूइड्स, बाय एरोसोल्स, थ्रू कफिंग, स्नीजिंग, और वे आर वेक्टर। और फॉर एग्जांपल ये वेक्टर क्या होता है, देखो मॉस्किटो क्या करता है, ये जो मॉस्किटो आपको बाइट कर लेता है स्टूडेंट, तो इससे क्या होता है, आपको फिर आपको डेंगू और मलेरिया ये सब बीमारियां होती हैं। तो ब्लड के अंदर, उसने ब्लड के अंदर सकिंग कर लिया, आपके ब्लड को सक कर लिया, तो उसके अंदर चले जाते हैं। तो ब्लड को सक करने से भी ये डिसीजेस हो जाती हैं स्टूडेंट्स। तो आपको समझ में आया आज का लेक्चर मैंने क्या बताया तुम्हें, Yes, sir. टू टाइप्स ऑफ डिसीजेस। कितने टाइप की बताई मैंने जल्दी, Yes, sir. कौन कौन सी, कितने टाइप की डिसीज बताई, हाउ मेनी टाइप्स आई हैव टोल्ड, इन्फेक्शियस एंड Non-infectious. वायरस। जो अभी तक कोरोना है, इज इट इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस, Sir, it is infectious. Sir, highly infectious. हाईली इन्फेक्शियस। तो इसके अंदर वो कौन सा पैथोजन है, वायरस कह रहे हो तुम, क्या है इसका, वायरस है। तो हाउ इट इज स्प्रेडिंग, बाय, it can spread through many ways, as you can see, direct contacts, sneezing. तो what we can do then, preventive methods क्या है, वही आप जो ले रहे हैं आज की डेट पे। तो ये सबसे डेंजरस होते हैं जो इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं। तो therefore I hope you got the idea, this is the most important topic in our class.
for the present situation, because this will help us in saving our lives and also help in saving the lives of other people. Therefore, we have to take preventive measures and follow the guidelines and keep isolation so that this infection doesn't spread from others to us or from us to others. And we washing our cleaning hands and everything what is being told, this will continue for still more time. We don't know anything in future yet. There is no medication or vaccination till date. Okay, thank you very much for such interactions with me and answering the question and understanding and spreading the message of infectious diseases is very important. You can tell your parents also. And once this lecture comes in the YouTube, you can pass it on to your friends and your parents. They can also go through this because this lecture is very important. This has valuable information on corona pandemic and other infection disease. Okay? Okay then. Bye bye and we'll see you in the next class. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Okay, bye with Anya. Bye.